देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन तो ये आपसे पूछ सकते हैं, जो सब सुने रहते हैं बेसिकली, कि वाई इज़ द पेनिनसुलर प्लेटू कॉल्ड एन ओल्ड लैंड मास है। जैसे जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, उसको वो एज ए ओल्ड लैंड मास क्यों माना जाता है, क्यों बताइए। Peninsular Plateau was part of the Gondwana land हम्म during the Cretaceous period, and so and that was the portions which become the peninsular part of India. So that's why it is called as old part of the. तो गोंडवाना लैंड बेसिकली ये किसके लिए फेमस था, आयरन के लिए, Gondwana गोल्ड के iron लिए, कि not कोल के लिए। coal. कोल के लिए। वाई आर द हिमालयाज हायर देन द वेस्टर्न घाट। Himalayas are young fold mountain, so due to which it is continuously rising every year because Indian plate is subducting below the Eurasian plate. However, the Western Ghats are old block mountains which are now weathered and eroded. As a result, the height of Himalaya is higher than Western Ghats. मतलब बेसिकली हिमालय जो है ना फोल्ड माउंटेन है, और वेस्टर्न घाट ब्लॉक माउंटेन है, तो वो जो है ना वो डिप्रेस्ड हो गया है, और जो हिमालय वो राइज हो गया है, कंप्रेस हो गया है। हम्म हम्म वाई आर हिमालयन रिवर मोस्टली पेरेनियल। Himalayan rivers are flooded by the Himalayan glaciers, so which receives regularly water by the melting of the glacier during the summer season also, and during the winter it receives during the normal days it receives from the precipitation. So that's why throughout the year the water supply is maintained in the Himalayan region. बेसिकली स्नो और ग्लेशियर्स उसका सोर्स है ना। जैसे जो पेनिनसुलर रिवर है उनका क्या है ना, वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है मोस्टली रिवर। तो कभी रेनफॉल हुई कभी नहीं हुई, रेन फेड रिवर्स है, लेकिन वो जो है ना उनका जो सोर्स है स्नो एंड ग्लेशियर्स है। तो उनका कंटिन्यूस जो है ना वाटर का सप्लाई होता रहता है बेसिकली। व्हाट आर द 3 मेन पैरेलल हिमालयन रेंज है। First is the Greater Himalaya, second is Lesser or Middle, second is Middle Himalaya, and third is Lesser Himalaya, which is called Shivaliks. 4 ही है, 3 ही है कि और है। It is the outermost is Trans Himalayas range. Then it comes Greater Himalaya, then Middle Himalaya, which is called Himadri, and last one is Shivaliks or Lesser Himalaya. ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं। नहीं, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री नहीं बोलते, मिडल वाले को बोलते हैं। श्योर। ग्रेटर हिमालय, चूँकि माउंट एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय में ना है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है, ग्रेटर हिमालय का ना है ये। शिवालिक तो आउटर मोस्ट है, हिमाचल जो है जिसको लेसर हिमालय बोलते हैं, या फिर मिडिल हिमालय बोलते हैं बेसिकली। मिडिल हिमालय वो हिमाचल वाला है, ग्रेटर हिमालय जैसे हिमाद्री है जी। Why is Deccan Plateau important? Deccan Plateau is important for the mineral resources, for example, iron ore, coal, or some rock phosphate or limestone. Second thing, it is also important for the presence of the black soil, which is essential for the this agriculture. And thirdly, it is also important for the all resources, energy resources. For example, the western part of the Deccan Plateau could be harnessed for the tidal energy or wind energy. So why its soil is black?
Deccan Himalayas were formed during the Cretaceous periods due to the flow of the lava, and that lava was basaltic, and basalt is basically black in color, dark in color, due to the presence of silica. I think that's why. So basically it is a volcanic region, basically that's why it is a black. Black soil are found. What are the Deccan traps? Deccan traps are strap-like stairs-like structures which are formed due to the subductions of the western part of the Indian plate. मतलब they are formed by the massive volcanic eruption basically. They are basically basaltic lava. Deccan traps are basaltic lava basically, right? Which were formed by the massive volcanic eruptions. They are called Deccan trap. मतलब कंटिन्यूस जो है लगातार वोल्केनिक इरप्शन होते गए लेयर बाय लेयर जो है ना, तो एक बेसाल्टिक लावा जो है ना इकट्ठा हो गई बेसिकली, एक्यूमुलेट हो गई, उसी को डेक्कन ट्रैप बोला जाता है बेसिकली। ये जो ऐसे टाइप है ना ब्लैक सॉइल के लिए बहुत फेमस है ये। हाँ, क्योंकि कहना एक क्लियर रिच ब्लैक सॉइल है बेसिकली, जो कि पास मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है जैसे के लिए। और ये बताइए कि टिल हाउ मेनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज एंड फ्रॉम द राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा? Yamuna, ओनली यमुना? which originates from this Himalayas. So the one, this is the only. तो कभी कभी फैक्चुअल कुछ भी पूछ लेते हैं यो। यमुना इज़ द ओनली राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज है। बाकी जो भी रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होती है ना, वो सब गंगा की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज बनाती हैं, लेकिन हिमालय जो यमुना जो है ना ओनली राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है जो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है। तो कहीं कि फैक्चुअल क्वेश्चन भी थोड़ा तैयार रहिएगा, क्योंकि कभी क्या है ना फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, डिपेंड करता है कि जो है ना उनका मन में क्या चल रहा है बेसिकली उस समय। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन जो नॉर्मल है वो आपको पता ही होना चाहिए। जो मान लीजिए बहुत मतलब बेग है क्वेश्चन जो मतलब ठीक है, तो आप उसमें सॉरी बोल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि सर इसमें मैं रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन जो है ना जैसे मैंने पूछा, ये क्वेश्चन जो है ना आपको आना चाहिए बेसिकली, इसमें आप सॉरी नहीं बोल सकते, नहीं तो नेगेटिव इमेज जाएगा। And if they ask some opinion-based questions, in that case, I am not able to explain it my opinion. So what should I do? ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में तो आपको रिप्लाई करना ही पड़ेगा ना जी, उसमें क्या है। ये आप नहीं कर पा रहे तो आपकी फिर वीकनेस दिखाएगा वो। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिए है ना कि अभी जो है मेक का एग्रीमेंट जो साइन हुआ है उसमें इंडिया का इंटरेस्ट कैसे इफेक्ट होगा, आपका ओपिनियन क्या है। अब इसमें जो है ना अगर आप फंस रहे हैं आप एक्सप्लेन करने में ना, तो फिर दिक्कत है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपना ओपिनियन बिल्डअप कीजिए। न्यूज़ पेपर पढ़ते मैं उसमें देखिए कि आज इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, इसमें मैं कैसे आंसर दूंगी बेसिकली। तो देख रहे 4-5 क्वेश्चन आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा वो पक्का, करंट अफेयर वाले क्वेश्चन। बोले कि ये चल रहा है जिसमें आपका क्या ओपिनियन है, आप इसको कैसे लेते हैं। जैसे अभी इसमें चल रहा है जानते क्या है, एनालॉग पनीर इसमें चल, हाँ तो ये पूछेगा कि ये डेयरी पनीर और एनालॉग पनीर में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या इसके लॉज है इंडिया में, फसाई का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पक्का है। अभी जैसे चाइना जो है ना अभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर के एक नया जो है ना वो स्टेटमेंट दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें आपका क्या ओपिनियन है। तो क्या है ना कि ये जो है ना इशू बेस क्वेश्चन आपका ओपिनियन ही पूछा जाएगा। हाँ, नॉलेज कम ओपिनियन ज़्यादा पूछा जाएगा कि आप उस इशू को कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपका 2-3 लाइन का ओपिनियन बिल्डअप होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं कि आप पूरा स्टोरी सुनाते रहिए। बस क्या है कि आप जो है ना मतलब एक मिनट के अंदर कहें ना आप मतलब हर टॉपिक में कहें ना आपका ओपिनियन फिक्स होना चाहिए कि हाँ इसमें ये मेरा मतलब टेक है, उसमें ये है बेसिकली। फिर जैसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, व्हाई डोंट नर्मदा एंड ताप्ती फॉर्म लार्ज डेल्टा? Nirmala and Tapi rivers
follow the path of the Rift Valley, and that too is the hard resistant rock, so due to which the sediment load is quite low in case of these rivers. Second thing, it flows when it is wind, it flows through a steep slope, so due to which the water flows with a high speed, due to which it is unable to settle down the sediments at its mouth. So these are the two reasons behind the rivers not forming delta. And what is meander? Meander is features during the natural stage where a river forms a wavy curvature during its path. विंड बेसिकली बेंड ऑफ द रिवर यू कैन से कि मतलब एक मतलब जो है ना जो रिवर बेंड कर जाती है ना बाय लेटरल इरोजन बेसिकली एंड डिपोजिशन, उसी को मेंडर बोलते हैं ना। जब मतलब जब उसमें सेडिमेंट और डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रिवर बेंड करने लग जाती है ना, तो उसी को मेंडर बोलते हैं। मतलब बेंडिंग ऑफ अ रिवर कॉज्ड बाय लेटरल इरोजन एंड डिपोजिशन बेसिकली सिंपल है, उसे मेंडर बोला जाता है। ऑक्सबो लेक क्या है कि वही बेंडिंग जो है ना जब कट ऑफ हो जाता है बेसिकली मेन रिवर से, तो उसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक है। कोई ऑक्सबो लेक का बताइए एग्जाम्पल कोई। Anshuta Lake is an Oxbow lake. कौन सी? Anshuta Lake is an Oxbow lake. Kavartal is an Oxbow lake. तो एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं लोग। मान लीजिए कोई पूछेंगे कि क्या है, फिर बोलेंगे कोई एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल भी आपको तैयार रखना है एक तो। डेल्टा और एस्चुअल में बेसिक डिफरेंस क्या है? Delta is formed delta is quite extensive, formed by the larger rivers due to the depositions of the sediment. मतलब ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है बेसिकली डेल्टा, और जो एस्चुरी है ना ये डिपोजिशनल नहीं है, ये फनल शेप्ड टाइडल रिवर माउथ है बेसिकली। जब फ्रेश वाटर जो है ना सी वाटर से मिक्स करता है ना तो एक फनल शेप्ड टाइडल रिवर माउथ बन जाता है बेसिकली, उसे बोलते हैं एस्चुरी। तो डेल्टा मतलब डिपोजिशन, डी फॉर डी याद रखिए, ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है जो रिवर बहुत सारा सेडिमेंट लेके जाती है और जमा करती है अपने माउथ पे। लेकिन जो एस्चुरी है ना ये डिपोजिशनल नहीं होता है, ये फनल शेप्ड टाइडल रिवर माउथ है जहाँ पे फ्रेश वाटर जब सी वाटर से मिक्स करता है ना तब होती है। तभी तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है ना एस्चुरी बनाती हैं, चूँकि उनके पास सेडिमेंट जनरली नहीं होता, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना जनरली डेल्टा बनाते हैं चूँकि उनके पास डिपोजिशन होता है। तो चीज़ों का हमको सिंप्लीफाई करके बताइएगा, ऐसा नहीं कि वो खुद कंफ्यूज हो जाएं। मगर जितना उनको इजी समझ में आप बताएंगे ना उनको ये लगेगा कि मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है कि मतलब सिंप्लीफाई करके बताता है। तो है ना, हमेशा चीज़ों को सिंप्लीफाई करके रखिएगा, बहुत सिंप्लीफाई। और जितना शॉर्ट में बताएंगे उतना ज़्यादा उनको मज़ा आएगा। मतलब उसी चीज़ को चाहे तो आप 2 मिनट में बोलिए, चाहे तो आप उसको 30 सेकंड के अंदर बोल के ख़त्म कर दीजिए, उसमें उनको अच्छा लगेगा कि इसकी क्लैरिटी कितनी अच्छी है, उनको ऐसा फील होगा बेसिकली। हाँ ये है। फिर क्या पूछ सकते हैं बेसिकली, व्हाई डज मेघालय रिसीव हैवी रेनफॉल? Meghalaya receive heavy rainfall because it's due to its location. It is located surrounding the hilly region, and it also receives the Bay of Bengal branch of the southwest monsoon, due to which it creates a funnel shape, which triggers the heavy rainfall in that area. मतलब जो मॉइस्चर लेडन बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है ना वो जाती है इधर साइड, तो ये क्या है ना सराउंडेड बाय हिल्स है पूरा मेघालय है, जैसे चेरापूंजी वाला एरिया है। तो क्या है ना कि तो इससे क्या है ना कि विंड वहीं पे क्या है ना राइज हो जाती है, वहीं पे तुरंत रेनफॉल होती है, लो क्लाउड बन जाती है, वहीं पे लो क्लाउड है, बहुत लो क्लाउड बन जाते हैं, वहाँ पे इंटेंस ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाती है बेसिकली। तो आपको ये भी बताना कि कौन सी टाइप की रेन होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है मतलब वहाँ पे, क्योंकि हिल्स है ना तो क्या है ना कि विंड जो है ना ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती है, तो क्लाउड बहुत लो बन जाते हैं और हैवी क्लाउड बनते हैं, मतलब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, और बढ़िया रेनफॉल कर देते हैं। तो मतलब आपको बताना है सराउंडिंग हिल्स इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि चारों तरफ से क्या है ना सराउंडिंग हिल्स है तो विंड क्या है ना बाहर नहीं जा पाती, वहीं ट्रैप हो जाती है, और मॉइस्चर तो ऑलरेडी है ही,
तो फिर क्लाउड बना लेगा और फिर रेनफॉल हो जाती है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल आंसर देना है कि कैसा क्यों होता है। सराउंडिंग हिल्स है, विंड ट्रैप हो गई, मॉइस्चर तो ऑलरेडी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच के थ्रू, तो क्लाउड बन गया, प्रेसिपिटेशन हो गया बेसिकली। फिर व्हाट इज वारछान? BARCHAN। Barchan are the depositional features in the desert area formed by the Aeolian means formed by the wind agent, and it is with shaped, crescent shaped. तो ये फॉर्म का क्रिसेंट शेप तो ठीक है मान लीजिए, लेकिन ये फॉर्म कब होता है? इसके अंदर एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सैंड ड्यून्स, इसमें क्या डिफरेंस है सैंड ड्यून्स और बारछान में? सैंड ड्यून्स भी तो विंड से ही बनता है ना डिजर्ट एरिया में, लेकिन क्या है ना वो हिल शेप्ड का होता है। सैंड ड्यून्स हिल शेप्ड का है, लेकिन ये जो होता है ना हिल शेप्ड का नहीं होता, ये क्रिसेंट शेप्ड का होता है बेसिकली। जो है ना ये जानते कब फॉर्म होता है? जब विंड कंटिन्यूसली फ्लो करती है और जो है ना सैंड सप्लाई लिमिटेड हो जाता है, तब जो है ना बारछान में। इसका फोटो देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको। तो ये पूछे कंडीशंस क्या है इसकी फॉर्म होने का। बारछान तभी बनेगा जब सैंड सप्लाई लिमिटेड हो और विंड कंसिस्टेंट फ्लो करती रहे, तब वहाँ पे बारछान बनेगा। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए बारछान बनने के लिए, ध्यान रखिएगा। लैंड फार्म से क्वेश्चन पूछेंगे, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था लैंड फार्म से, खतरनाक क्वेश्चन पूछा था। तो बता था आपको ना फेकोलिथ और लेपोलिथ में डिफरेंस पूछा था। तो क्या है ना कि लैंड फार्म से क्वेश्चन पूछते हैं, वो कन्फ्यूजन नहीं रहना है। हाँ एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से, खासकर तो आप ज्योग्राफी ऑफिसर तो और ज़्यादा पूछ सकता है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? टू बेसिक डिफरेंस है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन Coastal plains are submergent in nature, whereas eastern coastal plains are emergent in nature. And because why it is so? Because of the depositions of the materials brought by the rivers. Major है. Western coastal plains is having the wider continental shelf as comparison to the eastern coastal plains. And also western coastal plains are good for harbors and shipping activities as comparison to the eastern coastal plains. मतलब वेस्टर्न कुछ जो है नैरोवर भी है और ईस्टर्न कुछ जो है ना वाइडर है, जो कुछ डिपोजिशन होता है ना जैसे डेल्टा वगैरह का है ना। व्हाई आर केरला बैक वाटर इम्पोर्टेंट? Kerala's backwater could be important for the recreational activities and the tourism purpose. Also, it could be important for the livelihood of the farmers and for हाउ लाइवलीहुड? also for लाइवलीहुड कैसे करेगा? आपकी आवाज़ कट रही है। They can promote fishing. Hello. देखिए देखिए बैक वाटर है क्या? दे आर इंटरकनेक्टेड कोस्टल लगून बेसिकली है ना। जब कोस्टल लगून आपस में इंटरकनेक्ट हो जाता है उसको तो बैक वाटर बोलते हैं बेसिकली है ना। तो ये फिशरी के लिए सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए सपोर्ट करते हैं, टूरिज्म के लिए सपोर्ट करते हैं और लोकल लाइवलीहुड के लिए सपोर्ट करते हैं। ऐसे बताना है आपको। तो पहले आपको बताना है कि वो है क्या, फिर बताना है कि उसका इम्पोर्टेंट क्या है। मतलब कि इफ क्वेश्चन इज सेइंग व्हाई आर केरलाज बैक वाटर इंपॉर्टेंट, तो केरला का ये बैक वाटर होता क्या है? इंटरकनेक्टेड कोस्टल लगून सिस्टम बेसिकली व्हिच सपोर्ट्स फिशरीज, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, लोकल लाइवलीहुड। लगून क्या है उसे? Lagoon is a body of water which is surrounded by land. वो लगून है, ये तो आइलैंड है। No, island तो water से surrounded रहता है। तो आप क्या तो लगून के लिए क्या बोल रहे हैं आप? ये बोल रही कि lagoon जो है body of water है which is surrounded. A shallow water body separated from the sea हाँ, बेसिकली है, तो उसे बोलते हैं लागून बेसिकली है, जो कि लैंड से सराउंडिंग होता है ना। ये जस्ट जो है ना आइलैंड का अपोजिट है। आइलैंड क्या है ना वाटर से सराउंडिंग होता है और ये जो है ना लैंड से सराउंडिंग होता है। और ये सी से सेपरेट हो जाता है बेसिकली, जैसे चिलिका लेक को देख लीजिए यहाँ पे।
ये लगून है बेसिकली। हम्म व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड? Good question. Andaman Nicobar Islands is mostly volcanic in origin, whereas लक्षद्वीप I think Lakshadweep is mostly made up of कोरल आइलैंड, coral reefs. कोरल आइलैंड से बने हैं। हाँ, तो ये बेसिक डिफरेंस है, यही बेसिक डिफरेंस बताना है आपको। है, जब बेसिक पूछे ना तो बेसिक ही बताना है आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और आप बोल रहा है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, तो आपको फिर बेसिक ही बताना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है फिर उसको। जैसा क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन को ध्यान समझिए, ज़्यादा जल्दी आंसर देने का ट्राई मत कीजिएगा, कोई बात नहीं। वो क्या है ना, वो देखते हैं कितना पेशेंस इसके पास है। आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है ना, तब भी जो है ना उसको समझ के आराम से आंसर देना है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन अच्छे से आता हो उसका जल्दी से दे दीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता हो उसको जो है ना आराम से सोच के दीजिए, तो उनको लगेगा है ना कि इसकी कमजोरी है। आता है तब भी आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, आराम से अपने माइंड में बना लीजिए मुझे यहाँ तक बोलना है, फिर बोलिए। 2-3 सेकंड का पॉज आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि मेला थोड़ी लगा है कि मशीन थोड़ी है, सोचना तो पड़ेगा ही। तो आराम से पॉज करके फिर आंसर देना है, क्योंकि देखिए सब चीज़ें बहुत मैटर करता है। जो कि देखिए क्या है ना, अल्टीमेटली आपको क्या है ना वो यूपीएससी के लिए ले रहे हैं, तो आपको यूपीएससी फ्यूचर में यूपीएससी का इंटरव्यू देना है, तो आप उसको वो देखेंगे ना कि ये फ्यूचर में कैसे डील करेगा, कैसे क्या, तो पोटेंशियल वो देखेंगे बेसिकली कि बस पोटेंशियल है कि नहीं बेसिकली। क्योंकि 300 बच्चे में 60 बच्चों को लेना है उनको, तो उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इट इज़ यू हु हैज़ टू प्रूव। उनको प्रूव थोड़ी करना है कि आप बेटर हैं, या आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप मुझे लें। क्योंकि उनको क्या है, उनको कोई नहीं, लड़का 300 में 60 बच्चे तो मिल ही जाएंगे उनको, उसमें क्या है बेसिकली। तो ये है, व्हिच इंडियन आइलैंड हैज एन एक्टिव वोल्केनो? Active volcano Andaman Nicobar Island, barren island. क्यों एक्टिव वोल्केनो है ये? Because it has recently been erupted in 2022. That's why. नहीं, वो ठीक है, ये एक्टिव क्यों है, इसका क्या रीजन है आपको, मतलब ज्योग्राफिकल रीजन बताना है। Geographically, I will say that it's volcanic in origin due to the टेक्टोनिक एक्टिविटी बता दे रहे हैं, और क्या। हाँ, टेक्टोनिक एक्टिविटी बोल देंगे समझ जाएगा भाई। अब इसमें क्या ही रीजन बताएंगे आप। टेक्टोनिक मेन तो टेक्टोनिक एक्टिविटी है ना, उससे आपको अर्थक्वेक भी आता है, वोल्केनो भी आता है, सब वही रीजन में आ जाएगा बेसिकली। व्हाई आर कोरल रीफ्स वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज? coral reefs mostly survive in the area where the temperature is 27 degrees Celsius, and if it exceeds more than that, then the zooxanthellae will leave it, and then as a result coral bleaching phenomena could occur. So that's why moderate ocean temperature is needed for the survival of coral reefs. तो ये बताइए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और कोरल रीफ में ज़्यादा टेम्परेचर किसको चाहिए? Obvious tropical cyclone. ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए एज एन एवरेज? ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए एज एन एवरेज? बताइए। 27. तो 27 तो आप कोरल रीफ्स के लिए भी बोल रहे हैं। कोरल रीफ इससे तो ज़्यादा ही चाहिए ना, मतलब साइक्लोन तो ये है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो सके उतना अच्छा है। कोरल रीफ में एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है Why is iron and steel called a basic industry?
Iron and steel industries are mostly used as a raw material for the other industries. So that's why it is known as basic industry. फॉर एग्जाम्पल? For example, iron and steel can be used for automobile industries. ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट। आपको एग्जाम्पल बताना है। हाँ, कि बहुत सारे सेक्टर में यूज होता है ना, बेसिक से इसको बेसिक बोला जा रहा है। वाई इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड इन द वेस्टर्न इंडिया है? There could be multiple reasons. For example, the first and the foremost is the black soil, availability of black soil, for which cotton needs black soil. Second thing is that linkages, transport linkages, and financial raw material and historical factor are also there. Like first cotton and textile industry was situated in Mumbai. And, मुंबई? cotton मुंबई में textile- पहली बनाई गई थी कि सूरत में? So वो मुंबई का ही पार्ट है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, इसलिए। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? मुंबई को? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर मुंबई को या फिर अहमदाबाद को? अहमदाबाद को बोलते हैं शायद ना। मैनचेस्टर चेक कीजिए तो, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है ना पूछ देते हैं कभी कभी, और फिर क्या है ना, वहाँ गलती होती दिक्कत हो जाती है फिर। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद है। अहमदाबाद है ना। वाई आर IT इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड इन बेंगलुरु, हैदराबाद एंड अदर मेजर सिटी? वाई? There could be reasons like availability of the skilled labor force in that area. Then second, गवर्नमेंट विल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ग्लोबल कनेक्टिविटी। मतलब आपको बहुत सारे रीजन बताना है एक साथ, ऐसे नहीं कि एक दो रीजन बता देना है। स्किल लेबर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल कनेक्टिविटीज़, ऐसे आपको बहुत सारे रीजन एक साथ बता देना, तो ताकि उनको लगे कि इसके पास जो है ना आइडियाज़ की कमी नहीं है बेसिकली। हाँ, वाई इज मुंबई एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर? important industrial and commercial centers. It could be because of the concentration of many industries like textile, automobiles, and IT industries. Second thing, due to its it is also the financial capital of India. So the availability of capital is one such. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको पता है क्या? नेचुरल हार्बर। मुंबई जो है ना हिस्टोरिकली नेचुरल हार्बर रहा है। जो फॉरेन ट्रेड में मोस्टली होते थे ना, मुंबई से ही मोस्टली होते थे, तो इसका नेचुरल हार्बर कनेक्टिविटी अच्छी है, लार्ज मार्केट है, बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा है। ये है। वाई इज पंजाब सुटेबल फॉर व्हीट? Punjab is mostly situated in the temperate region. So one such it requires wheat requires cooler temperatures. So it could be one reason. Second thing, the success of the green revolutions. So that were the reason for that. Thirdly, it is Punjab is a semi-arid region. So it receives the moderate or lower rainfall, and wheat requires moderate to low rainfall. So that could be the reasons. बेसिकली फर्टाइल एलुवियल सॉइल, इरिगेशन, मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब रीजन है बेसिकली जिसके कारण जो है ना। वाई इज असम सुटेबल फॉर टी? Due to its climate and the hilly terrain, and because the tea requires a slopy region. एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल मत भूलिएगा जब टी की बात हो तो, क्योंकि टी वही होगा जहाँ एसिडिक सॉइल होगी, वेल ड्रेन्ड एसिडिक सॉइल, और वो जो असम अच्छा प्रोवाइड करता है। हाई रेनफॉल और वेल ड्रेन। देखिए वाटर जो है ना स्टैगनेंट नहीं होना चाहिए टी के लिए, लेकिन रेनफॉल कंटिन्यूसली होनी चाहिए। ये टी का
टी का जो ये पिक्यूलियर रिक्वायरमेंट है कि रेनफॉल कंटिन्यूसली होनी चाहिए, लेकिन वाटर स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप देखते हो कि टी जो है जनरली ना स्लोप एरिया में उगाया जाता है बेसिकली, ताकि वाटर पूरा बह जाए, लेकिन कंटिन्यूस इसे रेनफॉल चाहिए। इसीलिए यहाँ की सॉइल जो है ना एसिडिक होती है नेचर। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है टी के लिए, ध्यान रखिएगा। तो जिस क्रॉप का अलग पूरा रिक्वायरमेंट रहता है ना उसको पूछ लेते हो। वाई इज शुगर केन कंसनट्रेटेड इन यूपी एंड महाराष्ट्र मोस्टली? Sugar, it is mostly concentrated in UP and महाराष्ट्र, ऐसा क्यों? Maharashtra, because first thing is the soil, alluvial. It both has alluvial soil. Second thing, शुगर केन के लिए एलुवियल सॉइल जरूरी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। महाराष्ट्र में एलुवियल सॉइल कहाँ है जी? महाराष्ट्र में तो ब्लैक सॉइल है। एलुवियल सॉइल शुगर केन के लिए कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। देखिए इसका जानते क्या है, इसका रीजन बेसिकली जानते क्या है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि क्यों। एक रीजन आप ये बोल सकते हैं कि सूटेबल क्लाइमेट है, यूपी और महाराष्ट्र का क्लाइमेट सपोर्ट करता है। दूसरा इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, क्योंकि शुगर केन जो है ना एक लॉन्ग सीजन ग्रोइंग क्रॉप है। तो क्या है ना कि यहाँ का जो इरिगेशन फैसिलिटी है ना अच्छा है, यूपी का भी और महाराष्ट्र का भी। तो ये एक रीजन बोल सकते हैं आप बेसिकली, लेकिन कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ध्यान रखिएगा कि यही है। हाँ, सॉयल रीजन नहीं है। आप ही बोल सकते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, गवर्नमेंट सपोर्ट अच्छा है ना, हिस्टोरिकली जो है ना यहाँ से उगाया जा रहा है, ऐसा कुछ रीजन बोल सकते हैं। और मिल, ये इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। हाँ इंडस्ट्रियल, हाँ इंडस्ट्री जो है ना, जो शुगर मिल्स हैं यहाँ कंसनट्रेटेड है, तो ये कुछ इसके बेसिक रीजन हो सकते हैं बेसिकली। और फिर क्या पूछ सकते हैं, Why is the northeast geographically different from mainland India? Northeast. Why is northeast geographically different from mainland India? Okay, so the northeast is part of the peninsular plateau. However, it is separated by a gap which is called Malda Gap. So due to which it has different distinct characteristics as comparison to other part of India. That could नहीं be तो one reason. वो तो ठीक है, लेकिन आपको बताना मेरे कि कम्प्लेक्स माउंटेन सिस्टम, हैवी रेनफॉल, डेंस फॉरेस्ट, रिवर सिस्टम, ये सब जो है ना अलग है ना। नॉर्थ ईस्ट में डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ कहाँ है साउथ इंडिया में डेंस फॉरेस्ट। हैवी रेनफॉल ज़्यादा होती है नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली, रिवर सिस्टम भी अलग है वहाँ का, कम्प्लेक्स माउंटेन सिस्टम है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये आपको सब बताना है ना कि कैसे जियोग्राफिकली डिफरेंट है। बोल रहे हैं कि अच्छा, आप कैसे पूछ रहे हो, मतलब वाई नहीं पूछ रहे हो, क्यों, हाउ पूछ रहे हो, कैसे, तो टीचर्स बताना ना इसमें तो कि क्या क्या डिफरेंट है। हाँ, क्या क्या डिफरेंट है ये बताना था। फिर why are western Ghat higher than eastern Ghat? Western Ghat higher than Western Ghat. Western Ghat, most of the rivers flow eastward, so due to which the Eastern Ghats are eroded and degraded, due to which its height is low as comparison to Western Ghats. And Western Ghats are formed later as comparison to Eastern Ghat. So that could also be the second reason. और why are Himalayas young but Aravalli old? Because Aravalli were formed in Precambrian time, so that is old fold mountain, and the Himalayas are formed during the tertiary period, and
by the convergence. So that is the reason. It's formation time. अच्छा। हम्म, ठीक है। Why is the mineral waste industry concentrated on eastern and central India? Okay, so mineral belt is mostly due to the locations of the minerals. So there are two major mineral belt like the Gondwana belt and the central belt of Madhya Pradesh, Balaghat and Dindori these areas. So these are rich in minerals such as coal, iron ore, bauxite, limestone. So that's why the mineral are industry is also located in this region. छोटा नागपुर प्लेटू बताना है आपको कि यहाँ जो है ना कोल आयरन और बहुत ज़्यादा है बेसिकली। तो इट इज़ ईजियर टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्री नियर रॉ मटेरियल बेसिकली। Raw material side. ये हमारे इसमें थियोरी है, एक वेबर की थियोरी है, तो उन्होंने ये बताया है कि इंडस्ट्री की सुटेबल लोकेशन क्या होनी चाहिए। मैं बीच में उसको ऐड करके बता सकती हूँ, है ना, ऑप्शनल को थोड़ा बताने के लिए, हाँ क्यों नहीं। ताकि फिर मेरे से वो जि- इन डेप्थ पूछ लेंगे कभी कुछ। हाँ जितना डेप्थ में आप बताएंगे उतना तो उनको मज़ा आएगा ना, क्योंकि आपका ऑप्शनल है। जैसे हम लोग क्या है ना, हम लोगों से भी ये क्वेश्चन पूछ पूछ सकता है, पूछते हैं, पर क्या है ना कि हम लोग क्या है ना सीधे सिंपल से बता सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन क्या है ना कि आपसे डेप्थ में पूछ सकता है, दार न किया जाए, क्योंकि आपका ऑप्शनल है। जैसे हाँ तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि इस थ्योरी को किसने दिया है, ये भी पूछ सकता है बेसिकली। हाँ ऐसा है। Why is the Deccan Plateau relatively dry? Okay, due to its locations on the leeward side of the Western Ghats, so due to which it does not receive the rainfall much as comparison to the रेन शेड एरिया बेसिकली आता है। हाँ rain shadow area. हम्म, फिर तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे जो है जनरल, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइलैंड से मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, है ना, सॉइल से पूछा क्वेश्चन, इंडस्ट्री से पूछा क्वेश्चन, प्लेटू से क्वेश्चन पूछा, माउंटेन से क्वेश्चन पूछा। बस ये क्वेश्चन यही पूछेगी, इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा बेसिकली अब। तो इसे यही मतलब क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ इनके एग्जाम्पल और थोड़ा सा क्वेश्चन और ज़्यादा आपको आपको क्रिस्प देना है, शॉर्ट देना है, कंसाइज मैनर में देना है आंसर, ज़्यादा बड़ा लार्ज नहीं करना है। उनको लगे कि जो है ना इसको छोटा से बड़ा करना आता है, ऐसा ऐसा पता चले कि आप जो है ना एक ही टॉपिक को 3 मिनट बोले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको उसको शॉर्ट और कंसाइज करके बोलना है बेसिकली। तो ये सब जो है ना आप